Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be doing fine. Today we are going to start our next lecture, that is from the same chapter number 7. Previously we have discussed some HTML tags, some basic tags, and then we have discussed some different text formatting techniques, and we have also learned some font formatting tags of HTML. Today our whole topic is focused on how to create lists in HTML tags. We will discuss what kind of lists do we have and how do we create them in HTML using different tags. How do we create a web page with containing a number of lists using HTML tags. So proceeding to the lecture, first of all, we must know some different types of lists. There are two types of lists: order list and unordered list. Unordered list and order list, that is how it is written in this sequence. अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास उसके सामने टैग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दैट इज यूएल, और ऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास सामने टैग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दैट इज ओएल. द अदर टैग शोज द क्लोजिंग ऑफ दिस टैग. ठीक है, अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट के जो नीचे बुलेट्स बनी हुई हैं उससे आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट एन अनऑर्डर लिस्ट इज, और ऑर्डर लिस्ट के कॉलम में भी आपको उसके नीचे ऑर्डर का अंदाजा होगा कि व्हाट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. Unordered list is in the form of bullets. There are no numbers. Items are not shown with the numbers. They are only shown with the bullets. The bullet can be of any shape. जैसे यहाँ पे bullet आपके पास circle है तो that can be square, star or any other shape. There must not be any number. For unordered list, we use UL tag, and to include items in that list, we use LI tag. That you can see in the last line. LI tag is used to include items in an unordered list. Similarly, you can see order list. We have points 1, point 1 and point 2. This is an order list where items are displayed with the numbers, and those numbers can be in the form of ascending order. राइट, ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स आपके पास नंबर्स के फॉर्म में शो होते हैं और वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, 1 2 3 4. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज बेसिकली दी असेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली, ऑर्डर लिस्ट टैग इज OL, and to include the items in an order list we use LI tag. ठीक है, और similarly LI tag will be closed when an item in the list is included. So let's see some examples of lists. Here there is a comparison of order list and unordered list. In the first column you can see a picture of unordered list where three items are listed: cold drinks, hot drinks and ice cream. You can see they are shown in the form of bullets. There is no sequence of numbers, so this list is called unordered list where no items are shown with the any kind of number. On the other side you can see a list, ordered list, where some other items are shown with the sequence of 1 2 and 3. So this is an example of order list. ठीक है, appetizer, main course, salads, they are shown with 1 2 and 3. So this is an order list. On the other side we have an unordered list where only bullets were given. So this is how order list is different from unordered list. Remember once more, we use tag UL for type unordered list and we use tag OL for type order list, and to include the items in the list we use tag LI, and similarly when the item is included we must close the LI tag. So let's see an example. Let's practice this activity. We are going to practice this activity so that we can learn how an order list is created and how an unordered list is created, right? So we have created a folder with the name of class X. I have told you in previous class to create a folder with your class name, so that every activity we are performing we must keep a record of it, so that we can practice that later and we can have a record that what we have studied so far. So here is a class name folder, class 10. Here is an activity that we performed in the previous class. So doing the same, we will create a new document here. Let me share the screen more so that
the content can get visible to you. Okay, what we are doing here, we have already in previous activity here. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हमें पता है कि वेब डॉक्यूमेंट हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे. न्यू राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के अंदर, न्यू के ऊपर जाएंगे, वहां से हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, we will just name this activity 3. Although we have to save it further जब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख चुकेंगे. अच्छा, अभी हमने क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हमने एक्सप्लेन करना है, डिस्प्ले करना है. सबसे पहले हम कौन सा टैग लगाएंगे, HTML का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम हेड का टैग लगाएंगे. हेड क्यों हम लगा रहे हैं, हम हेड के अंदर अपना टाइटल लिखेंगे कि आज हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं. सो टुडे दिस इज आवर activity number 3, so we will write that in the title, which is activity number 3. या हम इसको लिख लेते हैं, आज हम लिखते हैं इसको HTML lists. okay, the title is done. टाइटल को हम क्लोज कर लेते हैं और हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं बिकॉज हेड्स पार्ट इज डन हियर. ओके, उसके बाद हम कौन सा टैग लगाते हैं, हम इसके अंदर बॉडी का टैग लगाते हैं. अब हमने क्या बात की कि हम लिस्ट क्रिएट करते हैं. सबसे पहले हम इस एक हेडिंग लिख लेते हैं इसके अंदर, हेडिंग 1 टाइप्स ऑफ लिस्ट. ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं. हेडिंग 1 को हम क्लोज कर देंगे. अच्छा, सबसे पहले हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट. ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम UL का टैग जो है वो यूज करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम एक और यहाँ पे हेडिंग देते हैं हेडिंग 2 के नाम से और हम लिखते हैं लिस्ट्स ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, हम फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं. हेडिंग 2 को हम कर दिया हमने यहाँ पर क्लोज. ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग लगाया, UL. इससे पता लग रहा है कि हम अनऑर्डर यानी बुलेट्स की फॉर्म में हम लिस्ट बनाएंगे. अब लिस्ट के अंदर मैंने आइटम्स लिखने हैं, मैंने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनानी है, एप्पल्स, ग्रेप, ऑरेंजेस. तो मैं डायरेक्टली उनको यहाँ पे नहीं लिखूंगी. मैंने क्या बात की थी कि लिस्ट के आइटम के लिए हम कौन से टैग यूज करेंगे, LI. तो सबसे पहले वाला हम लिखते हैं मैंगो लिखते हैं. ठीक है, पहली लिस्ट हमारे पास ये आ गई, इस लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया. लिस्ट के अंदर दूसरे आइटम के लिए अगेन हम LI का टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑरेंज, और हमने लिस्ट के टैग को क्लोज कर दिया. सिमिलरली लिस्ट तीसरा आइटम इसके अंदर हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, दैट कुड बी एप्पल. ठीक है, और तीसरा आइटम भी हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो गया है. ठीक है, सॉरी, \LI. ठीक है, हम इतने ही आइटम्स लिखने चाह रहे थे. तो हमने क्या किया, लिस्ट के साथ साथ हमने जो अनऑर्डर लिस्ट थी हमें इतनी चाहिए थी तो हमने अनऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया. ठीक है, उसके बाद हम अब फिलहाल अनऑर्डर लिस्ट को देख रहे हैं. इसी के साथ मैं अगली एग्जांपल में ऑर्डर लिस्ट को ऐड करूंगी. पहले हम इसको देख लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और यहीं पे हम साथ ही HTML को भी क्लोज कर देंगे. ठीक है, अब हमारे पास इतने से कोड में क्या चीज हो रही है कि हमने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली है फ्रूट्स की. ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने पास फाइल सेव एज क्या करेंगे, हम इसको एक्टिविटी 3 का नाम देते हैं .html और इसके साथ हम क्या लिखते हैं, ऑल फाइल्स. और ये कहाँ पे, ठीक है, फोल्डर के अंदर ही सेव हो रही है. ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया. अब आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है. यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी 3 के नाम से ब्राउजर के जो आप ब्राउजर यूज करें उसी सिंबल के साथ आपके पास फाइल क्रिएट होगी. इसको हम ओपन कर लेते हैं. तो यहाँ पे ओपन करने के साथ आप लोगों के पास विंडो ओपन हो गई है. देखिए, यहाँ पे हमने एक्टिविटी टाइटल में क्या लिखा था, HTML लिस्ट. तो यहाँ पे टाइटल आ गया. पहली हेडिंग हमने लिखी थी टाइप ऑफ लिस्ट, हेडिंग 1 का टाइटल दिया था तो टाइप ऑफ लिस्ट आ गई. दूसरी हेडिंग हमने दी थी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो उसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट थी. अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले होता है. तो हमने 3 चीजों को लिस्ट किया था, वो 3 चीजें हमारे पास एज इट इज आ गई हैं. ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को. ये हमारे पास अभी तक हमने काम किया है
अनऑर्डर लिस्ट का। अब इसी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को हम ऑर्डर के फॉर्म में 1 2 3 फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, इसी एक्टिविटी को हम एडिट करना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक किया, ओपन विद नोटपैड। अब हम इसी से आगे जहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट को एंड किया था उसी के बाद से हम ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हम एक और हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 2 टाइटल ही देते हैं, उसी फॉन्ट के साथ हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स विद ऑर्डर। ठीक है, हेडिंग 2 को हमने कर दिया क्लोज। और उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, ओएल। ओएल मींस ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर अगेन लिस्ट आइटम्स के लिए हमने एल आई का टैग लगाया और हम सेम जो है वो सीक्वेंस लिखेंगे, मैंगो। ठीक है, पहले लिस्ट आइटम लिखने गया, दूसरा लिस्ट आइटम इंक्लूड करना है, अगेन एल आई का टैग लगाया और ऑरेंज, और हमने लिस्ट 2 को भी क्लोज कर दिया। तीसरा आइटम हमने लिखा, तीसरा आइटम हमारे पास क्या है, एप्पल, और हमने तीसरे आइटम को भी क्लोज कर दिया और इसी के साथ हमने ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया कि दैट्स ऑल वी नीड, कि हमें ऑर्डर लिस्ट जो है वो यहीं तक चाहिए, हम इससे ज़्यादा नहीं करते। इसको हमने सेव किया, फाइल कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हमें सेव एज करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल इसको फाइल के ऊपर जाके सिंपल आपने इसको सेव करना है, या कंट्रोल एस से हम इसको सिंपल सेव कर सकते हैं। इसको हमने क्लोज किया। अगेन हमारे पास जो एक्टिविटी 3 थी उसको हमने रीओपन किया, तो नाउ यू कैन सी there is a list of same fruits with the order 1 2 3 के साथ आपके पास जो है वो ही fruits जो हैं वो order की form में display हो रहे हैं। तो this is how we can create a list of items in an order and without an order। ठीक है, ऑर्डर के साथ हम लिखेंगे तो 1 2 3 सीक्वेंस, जिसके लिए OL का टैग यूज होगा और अनऑर्डर के लिए UL का टैग यूज होगा, और लिस्ट आइटम्स के लिए दोनों के अंदर आपके पास LI का टैग यूज होगा। ये जो जिस तरीके से ये बोल्ड टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमने हेडिंग्स यूज की हैं जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। सो मूविंग टू अवर लेक्चर दैट वाज ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर थे हम, तो हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, हमने इसी तरीके की ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट अपने पास क्रिएट कर ली। नेक्स्ट टर्म इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, एनीथिंग अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट कैन बी कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड हेडिंग की भी बात करें, हेडिंग विद इन अ हेडिंग, तो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करें, दैट इज योर नेस्टेड लिस्ट। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। पूरी जो है वो आपके पास ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है, वो पूरी अनऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना इज योर नेस्टेड लिस्ट। हियर इज एन, आई हैव अटैच्ड एन एग्जांपल। आप इस इमेज के अंदर नजर देख सकते हैं कि उसने एक थिंग्स टू डू टुडे की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें उसने 3 मेन लिस्ट हैं जो कि ऑर्डर फॉर्म में है, फीड कैट, वॉश कार एंड ग्रोसरी शॉपिंग। अब फीड कैट के अंदर भी उसने उस काम को 4 डिफरेंट स्टेप्स में कैटेगराइज किया है, तो वो अब लिस्ट विद इन अ लिस्ट हो गई है। सो दिस इज योर नेस्टेड। अब यहाँ बाहर उसने कौन सी लिस्ट यूज किया, ऑर्डर लिस्ट यूज किया, और जो इनर लिस्ट है दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो लेट्स शेयर दी screen so that I can show you how to create a nested list। ठीक है, हम इसी एक्टिविटी को ओपन करते हैं। हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, ओपन विद नोटपैड। ये जो जितनी भी मैंने लिस्टों वाला काम लिखा हुआ था ये मैं सारा यहाँ से कर रही हूँ डिलीट। सिंपल, अब हमारे पास बॉडी आ गई है। ठीक है, बॉडी के अंदर अब हम क्रिएट करते हैं, हम हेडिंग दे लेते हैं, इसके अंदर H2 के टैग से हेडिंग देती हूँ। ठीक है, और हम इस हेडिंग को लिखते हैं सेंटर में। हम थोड़ा प्रीवियस जो हमने टैग्स पढ़े उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो हम इस हेडिंग को लिखते हैं सेंटर में। ठीक है, सेंटर टैग मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखाना है कि नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने सेंटर टैग को किया क्लोज। ठीक है, और उसके बाद मैंने हेडिंग को भी कर दिया है
क्लोज। ठीक है, अब हम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यही जो हमने एग्जांपल हमारे पास थी उसी की हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, या हम कंप्यूटर से रेलिवेंट जो है ना वो एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीक्वेंस पहला जो हमारे पास लिस्ट होती है हम उसको सीक्वेंस में रखते हैं, तो हम ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि 1 2 3 फॉर्म की फॉर्म में वो डिस्प्ले हो। ठीक है, इसके अंदर मैं पहला लिस्ट आइटम लिखती हूँ इनपुट डिवाइसेस, और इस लिस्ट को मैंने कर दिया क्लोज। अब इनपुट डिवाइसेस मेरे पास बहुत सारी हैं, तो अगेन वो एक और लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाती हूँ। ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है, मैं क्या बता रही हूँ। अब हमने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया, उसके अंदर पहला आइटम हमने लिखा इनपुट डिवाइसेस। अब मैंने इनपुट डिवाइसेस के आगे से लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि इनपुट डिवाइसेस को जो लिस्ट हो वो आपके पास अनऑर्डर फॉर्म में हो, तो मैंने इस वजह से यूएल का टैग लगाया। आप यहाँ पे ओएल टैग भी लगा सकते हैं। तो यूएल टैग के अंदर मैं पहली लिस्ट जो है वो लिखती हूँ। इनपुट डिवाइसेस में पहली डिवाइस कौन सी आती है? कीबोर्ड आती है। ठीक है, और लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया। दूसरी लिस्ट हमारे पास हो सकती है माउस, और लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अगेन तीसरी लिस्ट क्या हो सकती है? टच पैड, और लिस्ट को मैंने कर दिया क्लोज। बस यहाँ तक मुझे लिस्ट चाहिए थे। अब ऑर्डर लिस्ट को भी अगेन मैंने यहाँ पे करना है क्लोज। ठीक है, लेकिन सॉरी अनऑर्डर लिस्ट को मैंने यहाँ तक किया क्लोज। अब मैं ये यहाँ तक मैं आप लोगों को इसकी जो है वो एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसको रन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अभी हमने क्या किया, एक ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया और उसके अंदर हमने पहला आइटम डिस्प्ले किया इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस की भी मुझे आगे से लिस्ट क्रिएट करनी थी, तो मैंने उसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने 3 आइटम्स को डिस्प्ले करने के बाद ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको हम सेव करके देखते हैं कि अभी तक हमारे पास जो काम है वो क्या हुआ। एक्टिविटी 3 को मैं ओपन करती हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि नेस्टेड लिस्ट को मैंने सेंटर में रखा था, उसने उसको सेंटर में रख दिया है। ठीक है, और मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखी थी पहली इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइसेस को उसने 1 लिखा। उसके अंदर मैंने कीबोर्ड माउस और टच पैड को लिखा था अनऑर्डर लिस्ट, तो उसने उसको अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में ही डिस्प्ले किया। अब इनपुट डिवाइसेस के बाद मैं चाह रही हूँ दूसरी यहाँ पे हेडिंग, दूसरी जो ऑप्शन शो हो आउटपुट डिवाइसेस की हो, तो उसको देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। हम यहीं पे ही इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद नोटपैड। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मुझे अभी मजीद लिस्ट चाहिए। मैंने ऑन ऑर्डर लिस्ट को तो क्लोज कर दिया क्योंकि इनपुट डिवाइसेस के अंदर सिर्फ 3 लिस्ट ही थी, 3 आइटम्स ही थे। तो अगेन मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम का टैग लगाया। अब मैं लिख रही हूँ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और मैंने लिस्ट आइटम को कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब आउटपुट डिवाइसेस के आगे से मुझे लिस्ट चाहिए जो कि मैं अनऑर्डर लिस्ट ही कहती हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे अगेन यूएल का टैग लगाऊंगी और अगेन लिस्ट आइटम का टैग लगा के अब मैं आउटपुट डिवाइसेस को लिस्ट करूंगी। दैट कुड बी मॉनिटर, लिस्ट आइटम इज क्लोज। दूसरा हमारे पास लिस्ट आइटम है दैट इज प्रिंटर। ठीक है, लिस्ट आइटम इज क्लोज्ड। अगेन लिस्ट आइटम, और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स। ठीक है, ठीक है, और लिस्ट आइटम यहाँ पे हो गया क्लोज। और हमें मजीद आउटपुट डिवाइसेस की मजीद हमने आइटम्स मेंशन नहीं करने, तो हमने अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे कर दिया क्लोज। और हमारे पास में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले करना था, मजीद मुझे इनके अलावा और डिवाइसेस नहीं डिस्प्ले करने, तो मैं यहाँ पे अब ऑर्डर लिस्ट को भी कर रही हूँ क्लोज कि मुझे मजीद जो है वो इसके अंदर डिवाइसेस ऐड नहीं करनी है। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। हमने इसको सेव किया, अब हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर 2 पहले ऑर्डर लिस्ट हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और उनके बीच में उसने ऑन ऑर्डर फॉर्म में कीबोर्ड माउस और टच पैड को जो है वो लिस्ट कर दिया है। अब हम इसको हमने ये जो कीबोर्ड माउस और टच पैड को लिस्ट को हमने अनऑर्डर लिस्ट मेंशन किया था ना, अगर हम यूएल को एडिट करके ओएल कर देते हैं तो इनको भी वो 1 2 3 फॉर्म में जो है वो लिख देगा। जैसे कि यहाँ पे ये जैसे मैंने यूएल किया था ना, इसको मैं कर देती हूँ ओएल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको कर देती हूँ क्लोज, भी ओएल होगा। अगेन जो है ना इसको भी मैं कर देती हूँ ओएल, और यहाँ पे भी ये जो यूएल था इसको मैं कर देती हूँ ओएल। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज आया है। ठीक है, फाइल सेव,
इस एक्टिविटी को हमने ओपन किया। अब देखें उसने ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। पहले हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर उसने ऑर्डर लिस्ट ही क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोनों टाइप की लिस्ट का। हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और सिमिलरली अनऑर्डर लिस्ट का ही दोनों कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, बाकी दो आपने खुद ही उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स गेट बैक टू दी लेक्चर। ओके हमने देख ली, हमने नेस्टेड लिस्ट को भी देख लिया। लास्ट जो लिस्ट के अंदर ही हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज योर डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन से आप लोगों को पता होगा कि हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं, हम उस हेडिंग का नाम लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास लिस्ट ही है, लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो सिर्फ एक नाम का आइटम शो नहीं होता, उस आइटम की पूरी डेफिनेशन होती है। एक आइटम को आपने पहले लिस्ट किया और उसकी डेफिनेशन लिखी, दैट इज योर डेफिनेशन लिस्ट। सिमिलरली जैसे आप लोगों को कहा जाए कि HTML को डिफाइन करें, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे, और HTML की पहले हेडिंग देंगे और फिर HTML का आंसर लिखेंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन लिस्ट होती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम विद एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो पिक्चर साथ अटैच किया उसमें नजर आ रहा होगा कि पहले हमारे पास बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक के साथ ही उसने बैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरा आइटम लिखा हुआ है ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के आगे ही उसने ग्रोसरी स्टोर की डेफिनेशन लिखी है। फिर तीसरा आइटम है गैस स्टेशन, और गैस स्टेशन के आगे उसने गैस स्टेशन की डेफिनेशन लिखी है। सो दिस इज अ डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर आप लिस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस लिस्ट में मौजूद आइटम्स को साथ साथ आप डिफाइन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अब आपके पास डिफरेंट टैग्स यूज होंगे। देयर आर 3 नंबर ऑफ टैग्स दैट यू यूज फॉर डेफिनेशन लिस्ट। जहां से आपकी डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होगी वहां पे DL का टैग यूज होगा, दैट डिफाइंस द डेफिनेशन लिस्ट। और आइटम्स जैसे वहां पे हम आइटम्स के लिए LI का टैग यूज करते थे, यहाँ पे आइटम्स के लिए आपने DT का टैग यूज करना है। और जैसे यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है ना, तो बैंक लिखने से पहले मैं DT का टैग लगाऊंगी, ठीक है। और ये जो आगे अ प्लेस टू स्टोर एंड विदड्रॉ मनी, इसके लिए आपके पास टैग लगेगा DD का, दैट डिफाइंस द आइटम्स डिस्क्रिप्शन। जो आइटम की आगे डेफिनेशन को डिफाइन करेगा उसके लिए हम DD का टैग लगाएंगे। तो 3 तरह के टैग यूज होते हैं डेफिनेशन लिस्ट में, जिसमें आइटम्स को ही एक आइटम्स की लिस्ट होती है और उन आइटम्स को फिर आगे डिफाइन किया जाता है। DL टैग है, DT टैग है एंड DD टैग है। जैसे वहां पे हम लिस्ट ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने से पहले OL का टैग लगाते थे, यहाँ पे हम डिफाइन लिस्ट को लिखने से पहले DL का टैग लगाएंगे। अब यहाँ वहां पे हम आइटम के लिए LI का टैग लगाते थे, यहाँ पे हम आइटम के लिए DT का टैग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज ऐड होगी है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ दैट आइटम, उसके लिए हम DB का टैग लगाएंगे। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को ये चीज जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सो दैट we can see how this is done। definition list हमारे पास किस तरीके से होती है। एक्टिविटी 3 को हम एडिट करते हैं, इसको मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद नोटपैड। आई होप आप लोग मुझे साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हम बॉडी के बीच में बॉडी टैग जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे बॉडी टैग एंड हो रहा है, उसके बीच में जो कुछ लिखा था हम वो सारा रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम जो है वो एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं H1 और इसके अंदर अच्छा हेडिंग का हम जो है ना इस दफ़ा कलर चेंज करते हैं। फॉन्ट कलर हमने पढ़ा ना, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और मैं उस हेडिंग अच्छा हेडिंग 1 लिख दिया, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग 1 हम क्या देते हैं, डेफिनेशन लिस्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज किया। फ़ॉन्ट को क्यों क्लोज करेंगे, अगर यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को क्लोज नहीं करेंगे तो इसके आगे जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे उस सारे का कलर ग्रीन हो जाएगा वो, और मुझे क्योंकि सिर्फ हेडिंग का कलर ग्रीन चाहिए, इस वजह से मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया और साथ ही मैंने हेडिंग 1 को भी क्लोज कर दिया। अब हमने डेफिनेशन लिस्ट जब स्टार्ट करनी है तो हम उसके लिए DL का टैग लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब हम डेफिनेशन लिस्ट के अंदर मैं कहती हूँ कि HTML को डिफाइन करते हैं, ठीक है। HTML और वर्ल्ड वाइड वेब दो चीज़ें हैं ना, HTML और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों आइटम्स को हमने डिफाइन करना है। तो पहले हम आइटम लिखेंगे, आइटम के लिए DT का टैग यूज होगा। आइटम के लिए हम क्या करेंगे, DT का टैग लगाया और इसके अंदर मैंने आइटम लिखा HTML, ठीक है, और DT को मैंने कर दिया
क्लोज, उस आइटम को मैंने क्लोज। अब मैंने HTML की डेफिनेशन लिखनी है तो इसके लिए मैं डी का टैग लगाऊंगी, जिसके अंदर मैं क्या लिखती हूँ, इट इज a language that is used to create web pages with the help of tags। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखने की, मुझे मजीद डेफिनेशन नहीं लिखनी है HTML की, तो मैं यहाँ पे डी टैग को क्लोज करूंगी एंड दैट्स डन। अब मैं लिस्ट के अंदर दूसरा आइटम ऐड करूंगी। दूसरे आइटम के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, डी। कौन सा दूसरा आइटम, हम दूसरा आइटम लिखते हैं www, और आइटम मैंने इतना ही लिखना था इसलिए मैंने dt टैग को कर दिया क्लोज। अब मैंने वो www की डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिए कौन सा टैग यूज करूंगी, dd। आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही होगी। dd का टैग लगाया और मैं लिखती हूँ कि इट स्टैंड्स फॉर, किस, www से क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके साथ ही मैंने dd का टैग क्लोज किया। मुझे सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन लिस्ट चाहिए थी, तो जो स्टार्ट हमने लिया था ये DL टैग जो बता रहा था कि ये इससे नीचे वाला कंटेंट हमारे पास तमाम डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे इसको DL टैग को कर दूंगी क्लोज, दैट्स ऑल। अब हमने इसको सेव कर दिया, फाइल सेव, ये कंट्रोल है। अब हम एक्टिविटी 3 को ओपन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट का टैग आ गया, जिसका मैंने कलर ग्रीन किया था, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मैं फॉन्ट कलर उसका ग्रीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों लिस्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। HTML की लिस्ट भी मौजूद, HTML भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और WW भी, लेकिन देखिए HTML के साथ उसकी डेफिनेशन लिखी है और WW के साथ भी उसकी डेफिनेशन लिखी है। HTML के लिए हमने DT का टैग लगाया था, डेफिनेशन के लिए DD का टैग लगाया था, और इसी तरीके से अगले आइटम के लिए हमने WW के लिए अगेन DT का टैग लगाया था, और यहाँ पे भी हमने D का टैग लगा के उसको डिफाइन किया था। सो दिस इज हाउ डेफिनेशन लिस्ट इज क्रिएटेड इन HTML। यू कैन ऐड, आप लोग यहाँ पे अब HTML को लेट्स सपोज बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, HTML का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। पिछले टैग्स क्योंकि हमने पढ़े हैं, जैसे HTMल को मैंने बोल्ड करना है तो मैं कौन सा B का टैग लगाऊंगी, फिर HTML का मैंने फॉन्ट कलर लेट्स सपोज करना है कौन सा करते हैं हम, रेड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। उसी के साथ मैंने HTML टैग के बाद मैंने पहले फॉन्ट को क्लोज किया और उसी के साथ मैंने बोल्ड वाले टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और अब हम एक्टिविटी 3 को ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आओगे HTML को उसने बोल्ड भी कर दिया, उसका कलर भी उसने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मर्जी से अब इसके अंदर टेक्स्ट लिख के उसके अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन लिस्ट को अगर आपने अलग से डिफाइन करना है, उन लिस्ट का ऑर्डर क्रिएट करना है, आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसके कलर चेंज करने हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर हमने टैग्स पढ़ लिए हैं कि आप एटलीस्ट कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। सो आप लोगों ने अगेन क्या करना है कि यही एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने एक्टिविटी मुझे भेजनी भी है। आई विल मार्क योर एक्टिविटी। आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो है वो एक्टिव रिस्पॉन्स दें इस बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू ऐड इमेजेस इन द बैकग्राउंड और इन द वेब पेज। इमेजेस किस तरीके से ऐड होंगे या इमेजेस के ऐड करके उसके ऊपर किस तरीके से लिखा जाएगा, दैट विल मेक योर वेबसाइट मोर attractive. That's all for today. Practice this activity and send me in your subject group as well. Allah Hafiz.